हम सीधे चल रहे हैं मुंबई इस वक्त, जहां पर आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस के हेमंत करकरे संवाददाता सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं। Yes, Mr. Sukhender Singh will share those sections with you. 3 subsection 1, again subsection 1, 3 subsection 2 and 3 subsection 4. Sir, one more thing, why these people have not been booked for waging war against nation, as it has been done in the past in all the bomb blast cases in Maharashtra? Why? Well, the investigation is on. Whichever sections we think are relevant, for whichever sections we think evidence is available, at the appropriate time relevant sections would be applied. This is not finality. Process of investigation is on. I think we are entitled to keep some things with us to ensure that investigation proceeds on proper lines. So, does this case move from Nashik to Mumbai now? One question. Does this case now move from Nashik to Mumbai, or the trial will continue in Nashik? The case remains with ATS. Our several teams are working. They are working wherever it is necessary to go for collection of evidence. No, sir. So, if you are referring to courts, the entire case, right from beginning, and the investigation is being done under judicial supervision. At every stage, we are keeping the courts informed as required by the law. And presently, after the application of MCOCA, it will move to the jurisdiction of Honorable MCOCA Court in Mumbai. Exactly. So what are you planning to achieve by applying MCOCA, Organized Crime Act, to a terror act? I mean, is this Organized Crime Act you are applying? Well, I do not understand your question. What we are going to achieve, you say. We are only applying whatever are relevant sections of law which are necessary to be applied based on available evidence. Some newspapers have reported that there some phone movies have been found in the laptop of that Mahant Dayal and Sudhakar. What is that talking about? Well, we are yet to get report from FSL. We have sent the laptops to the FSL, and but from the interrogation of this accused, Sudhakar Dwivedi alias Dayanand Pandey, we believe that we will get some very relevant and good evidence from the laptop. हमें सफलता तो अच्छी मिली है। आप देख रहे हो कि शुरू हमने किया था एक एक्यूज से, उससे आगे बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 10 ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, 11वां भी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं। The investigation is progressing satisfactorily, entirely under the judicial supervision. और कितने दिन लगेंगे मैं ये कहूँगा कि कानून हमें कम से कम 90 दिन देता है, तो कम से कम उतना दिन तो हमें आप मोहलत दीजिए, फिर आप हमें जरूर पूछिएगा कि पूरा हुआ है नहीं। मुझे उम्मीद है जो कानून ने जो मर्यादा रखी है इन्वेस्टिगेशन पूरी करने की, उस मर्यादा में हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा। नहीं, वेल ये फाइनल डिटेल्स अभी ऑफेंस सब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक आरोपी राकेश धावड़े, उसके खिलाफ चार्जशीट है। हमारा मकसद मालेगांव ब्लास्ट केस का इन्वेस्टिगेशन है। ये किसी फिल्म पर्सनैलिटीज और किसके साथ संबंधित है, इस पे हमारा फोकस नहीं है। यदि फंडिंग की बात होगी तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उससे संबंध होगा तो जरूर उनका हम एविडेंस लेंगे, लेकिन ऐसा लेबल करना फिल्म पर्सनैलिटी या और कोई अदर पर्सनैलिटी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फंडिंग के साथ संबंध होगा तो उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और एविडेंस यदि रिलेवेंट होगा तो केस में शामिल किया जाएगा। नहीं, ये हम इस स्टेज पे नहीं हम रिवील करना चाहेंगे। है हमारे पास एविडेंस, रिवील करने में ठीक नहीं लगता है। क्या हुआ था ये तो आपको मालूम है, 29 सितंबर को क्या हुआ था, प्रेस हैज वाइडली कवर्ड इट। लेकिन इनका एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो बोला है, इनका एक प्लान था, उसके मुताबिक कॉन्स्पिरेसी हुई, उसके मुताबिक मटेरियल कलेक्ट किया गया और प्लान एग्जीक्यूट किया गया। अब किसने कहां कैसे कब किया, इसके बारे में डिटेल्स हम आपको उम्मीद है कुछ समय में बता सकेंगे।
बिजनेसमैन का नाम आ रहा है कि महाराष्ट्र और बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने फंडिंग में हेल्प किया है, क्या कोई बिजनेसमैन इसमें रियली में इन्वॉल्व है? मैंने जैसे कहा है कि मैं आपके साथ हर विटनेस, हर इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर करना प्रीमैच्योर होगा। उससे इन्वेस्टिगेशन हमारा क्वेस्ट फॉर ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो एक्यूज बता रहा है या और कोई एविडेंस सामने आ रहा है, वो यदि हम पहले से ही आपको बता दे क्या है तो उसको ऑब्लिटरेट करने में आरोपियों को मदद होगी। इसलिए मैं स्पेसिफिक डिटेल्स आपको इस स्टेज पे नहीं बताना चाहूंगा। Absolutely zero political pressure. Investigation agency, the entire team of ATS is working very professionally. Each bit of evidence is being verified, doubly verified, corroborated, and only then we are initiating next steps. There is absolutely no political pressure from any quarters on the investigation agency. आरोपियों की तरफ से भी कानून का इस्तेमाल एक मिनट, एक समय ATS को कार्रवाई को लेकर PIL दाखिल हुई है और इसमें इसकी जो ATS से जांच निकालकर CID या CBI के हवाले करने की बात आपके सामने आ रही है, मतलब मांग की जा रही है। नहीं, आपका क्या सवाल है? ATS की जांच को लेकर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी है, यहाँ की राज्य की शिवसेना है, ये आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, कोर्ट में PIL फाइल कर रहे हैं, ये क्या प्रेशर नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते हैं। देखिए, जो कोर्ट प्रोसेस है, वी आर सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट. We are going to the court at every stage of investigation whenever remand is being taken of the accused. Case diaries are written regularly, whatever investigation is carried out on that particular day. And on the date of remand, the courts indeed peruse the case diaries. तो वो देख रही है हमारे. We are not answerable to any other agency other than honorable courts. इसलिए हम पे कोई भी प्रेशर या दबाव नहीं है और हम मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका नोट जरूर लेते हैं, बट टू से दैट वी आर अफेक्टेड बाय रिपोर्ट्स गिवन हियर एंड देयर वुड बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एक मिनट, फिर से गलत है. मैंने कहा गलत है. कुछ भी इंफॉर्मेशन आई है? हम अभी मालेगांव ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. जो भी कुछ इंफॉर्मेशन और किसी इंसिडेंट के बारे में वो रिलेवेंट कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ अप्रोप्रिएट टाइम पे शेयर की जाएगी और वो फॉलो करें. नहीं, देखिए ये कंप्लेंट कोर्ट में की गई है, एफिडेविट कोर्ट में दाखिल हुआ है, ये सब जुडिस मैटर है. जो भी रिपोर्ट है हमारा कोर्ट के सामने जाएगा. मुझे लगता है कि इस बारे में मैंने आपके सामने यहाँ कमेंट करना ठीक नहीं होगा. सर, एक अच्छी बात सामने आई है कि देश के प्रधानमंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी को फोन करके कहा है कि आप पब्लिकली कमेंट मत कीजिए जानकर, एटीएस अच्छा काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का अभी भी कहना है कि एटीएस जो है वो बायस होकर काम कर रही है. क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी के भी कुछ कमेंट पे कमेंट करना मैं ठीक नहीं समझता, ना वो हमारा काम भी है. यही कहूंगा कि हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं. जो एविडेंस सामने आ रहा है, जिसपे जो स्टेप्स लेना आवश्यक है कानून के मुताबिक, उसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं. किसी के भी कहने पे, किसी भी दबाव में बिल्कुल हमारी टीम काम नहीं कर रही है. इट्स ए टीम वर्क. ईच मेंबर ऑफ माई टीम इज वर्किंग एज पर द डिक्टेट्स एंड द गाइडेंस ऑफ द लॉ. समझौता ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, ये बयान आया था पीपी की तरफ से, तो क्या उसको डिनाई करेंगे सर आप पूरी तरह से? क्योंकि पीपी ने खुद सामने बयान दिया था कि समझौता ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था और पुरोहित का इन्वॉल्वमेंट था. देखिए, एक विटनेस ने ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और जैसे मैंने कहा कि केस डायरी में हर चीज का बयान होता है, तो उसके अनुसार पीपी ने स्टेटमेंट किया था कि उसका वेरिफिकेशन करना है. जो इन्फॉर्मेशन दी है उस सिलसिले में उन्होंने मेंशन किया था. लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट पे है और सिर्फ एक विटनेस के कहने पे जो भी कहेगा वो कभी, मैंने जो बार बार कहा है, वी डू नॉट टेक इट एज अ गॉस्पेल ट्रूथ. इट इज सब्जेक्ट टू कॉरोबोरेशन एंड वेरिफिकेशन. लेकिन अभी वो प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं, वो रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी.